Straight your spine, keep close your eyes. Madam Namaskar Mudra. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Yogena Chityasya Padena Vacham Alam Sarirasya Javadakina Jopakarotam Prabhuram Muninam Patanjalina Pranajalirana Tasmi. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. When it's little warm, gently attach your palms. ओके कल हम लोग कौन सा टॉपिक तक पढ़ाई किए थे? आनंदमय कोशा। ओके ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन है? ओके यस যেটা পঞ্চকোষা যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে ওই তৃতীয় উপনিষদ, তো এটা তো পঞ্চময় কোষা না, ওটা তো ওখানে তো পঞ্চময় কোষার কথা কিছু লেখা ছিল না, ওখানে তো ব্রহ্মা নিয়ে লেখা ছিল। Brahma, not Brahma, that is called Brahma. Brahma means ultimate God. হ্যাঁ, তো এখন যদি বলা হয় যে পঞ্চকোষা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, তো ওখান থেকে তো নেওয়া হয়নি। No, that is by Adi Shankaracharya. This theory comes from Adi Shankaracharya, and he have taken the idea of Panchakosha from Taittiriya Upanishad. তাহলে তৈতরীয় উপনিষদ থেকে তাহলে ব্রহ্মা কি উচ্চারণটা বুঝতে পারছি না। Taittiriya Upanishad. হ্যাঁ, ওখান থেকে उपनिषद से ब्रह्म के बारे में तैत्तरीय उपनिषद में था। अच्छा, ये आदि शंकराचार्य वही तैत्तरीय उपनिषद का ही कॉन्सेप्ट लेके उनका फिलोसॉफी में फिट करने के लिए पंच कोश के बारे में क्या बोलते हैं, पंचकोशा को लेके आए हैं इन। মানে তাহলে এটা কোনো কোশ্চেন, মানে কোশ্চেনের মধ্যে পড়ে না যে পঞ্চকোষা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে বা পঞ্চকোষা কোথায় ছিল? पंचकोशा यस, ওটার কিছু নেই। আর একটা হচ্ছে অন্ধকরণা, যেটা মধ্যে যেটা মন, বুদ্ধি, অহংকার আর চিত্ত, চারটে আছে যেটা অন্ধকরণা, যেটা মন, বুদ্ধি, অহংকার আর চিত্ত। তো চিত্ত মানেও মন আর মনহা মানেও তো মন, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি? मन बुद्धि अहंकार, ठीक है, ये तीनों को मिला के होते हैं चित्त। मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों एक साथ होते हैं চিত্ত। चित्त। আর স্যার এখানে অহংকারটা মানে বাংলায় তো অহংকার লেখা, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় কি এটা হক্কারা এরকম কিছু? अहंकारा, আহম, यस, কোথায় আহম? এ এম এইচ এ
KARA Yes, ahamkara. হচ্ছে না তো স্যার, অহংকারই বলছি। বাংলায় হচ্ছে অহংকার। হ্যাঁ কিন্তু এইটা কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। ahamkara, আমহাকারা, ahamkara. আচ্ছা, মন বুদ্ধি অহংকার নিয়ে চিত্ত। Yes. আচ্ছা। আর প্রিয়াস মানে কি? প্রিয়াস क्या? প্রিয়াস KRIYAS ওই আনন্দময় কোষার মধ্যে আছে। প্রিয়াস আসানা প্রাণায়ামানা। क्रियाज मतलब सट क्रिया. That is we are about to learn all these things. अभी वो हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, भी जान जाओ. ক্লিষ্ট Yes. রজস তামস সবকিছুর মধ্যে ক্লিষ্ট অক্লিষ্ট আছে, ওটা কি? Clist means which is painful, aclist means which is not painful. ক্লিষ্ট means which is painful. Yes. Okay. স্যার এটা মানে AURA অরা, AURA অরা means That means that is क्या बोलेंगे? Wave of vibration. जैसे वो जो भी भगवान होते हैं ना, उनका पीछे देखना एक वाइट कलर का रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑरा. So, हर एक व्यक्ति के अंदर में ही वो ऑरा रहते हैं, दैट वाइब्रेशन रहते हैं. दैट्स व्हाई किसी के सामने जाने से बहुत पॉजिटिव फील होता है, किसी के सामने जाने से बहुत नेगेटिव फील होता है. মানে ওই স্যার जिनका पॉजिटिव फील होगा, जिसका नेगेटिव वाइब्रेशन है, उन पर नेगेटिव फील होगा. মানে স্যার একটা সময় হয় মানে কেউ বাড়িতে থাকলে যে আমাদের অনেক সময় বাড়িটা গ্র্যাভিটি পূর্ণ ভারী মনে হয়, কি অরার জন্য? एकदम. प्रत्याहार प्राणायाम एंड प्रत्याहार प्रैक्टिस। प्रत्याहार 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 क्या है वो हम लोग पढ़ाई करेंगे, अभी हम लोग पढ़ाई नहीं किए हैं. और ACATH सित, एस सित और क्या? सित मतलब और क्या? ई नहीं मतलब कहाँ पे लिखा हुआ है यार, कहाँ है? पूरा सेंटेंस बोलो. आनंदमय कोशा लास्टे আছে মেডিটেশন স্টেট स्ट्रेंथन. হ্যাঁ স্ট্রেনে বাবা ये तो জড়িয়ে আছে মানে দিস সিট। शीत मीन्स कोसा. कोसा कोसा अभी पढ़ रहे हैं ना, तो सीट मतलब वही कोस है. স্যার यस. রাজস means full of action, তো ফুল অফ অ্যাকশন মানে কোন কি বিষয় ফুল অফ অ্যাকশন? नहीं, कौन उस दिन तुम लोगों को कुछ समझाया गया था या ऐसे ही एक एक शब्द बोलने से नहीं होगा? रज मतलब जैसे राजसिक गुण का जो समझाया जाता है, दैट इज रजगुण. जैसे कोई एक पुलिस ऑफिसर, दे आर रजोगुनी. मतलब आप कोई पुलिस थाना में जाओगे तो आप देखोगे कि दे विल से क्यों आया है यहाँ पे, क्या चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दे आर रजोगुनी. वही आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, ग्रुप सी या ग्रुप डी का, वो लोग बोलेंगे अच्छा आप बैठो, फिर देखते हैं, आज नहीं होगा, आज बहुत बिजी है हम, 2 दिन बाद आइए. दे आर तमोगुनी. एंड इफ यू गो टू ए प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ पे जो टीचर रहेंगे उनसे बात करके देखना, बहुत सुकून मिलता है. या हाई स्कूल के टीचर मतलब वो बहुत काम एंड क्वाइट होते हैं, शांत स्वभाव का होते हैं. सो बिकॉज दे आर सत्वगुणी. तो ऐसे ही हर एक जगह पे ये 3 गुण रहता है. कोई हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो भी सत्व रज और तम हो सकते हैं, कोई भी सोच विचार कर रहे हैं वो भी सत्व रज और तम हो सकते हैं. इसीलिए एवरीथिंग इज अंडर दिस 3 कैटेगरी, सत्व रज एंड तम. ओके सर. Now we'll move to introduction to major school of yoga, Jnana, Bhakti, Karma, Patanjali and Hatha. First is Jnana Yoga. What is Jnana Yoga? Jnana Yoga in Sanskrit means knowledge. Hence, Jnana Yoga is also called
the yoga of wisdom. It shows the path of self-realization through discerning the real from the unreal or illusory. It is practice of discrimination between the product of nature and transcendental self. Until the true self is realized in the moment of liberation, Jnana Yoga is strictly non-dualistic Advaita Vedanta path that encourages the yogi to separate the real from the unreal and the self from the non-self. Since the mind is considered a part of the unreal, one must use the mind to outwit itself. The principal technique of this path are contemplation and meditation. There are the 3 stages of Jnana Yoga. These 3 stages of Jnana Yoga practice are considered as Sravana, Manana and Nididhyasana. मतलब ज्ञान योग क्या है? ज्ञान के द्वारा कोई भी चीज को जानना वही है ज्ञान योग। और वो कैसे हम लोग और क्या जानते हैं? दैट इज कुछ भी चीज अगर होते हैं सो अल्टीमेट इज उसको सही से जानना, एंड दैट इज अल्टीमेट। सही से जानना ही ज्ञान योग है। স্যার এই তিনটার একবার বলবেন, हम्म, the three stages of यस। श्रवण मतलब सुनना, ठीक है। मनन मतलब मन ही मन में उनको चर्चा करना, दैट इज कॉल्ड मनन। और निधिध्यासन है ध्यान में बैठते हुए इसको अगर हम लोग रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड निधिध्यासन। श्रवण मतलब सुनना। निधिध्यासन। अच्छा, लेट मी कंप्लीट। श्रवण मतलब सुनना। सुनना मतलब जैसे किससे सुनेंगे? वो बोला जाता है गुरु के पास से कुछ सुनते हैं तो दैट इज कॉल्ड श्रवणा। मनन, मन ही मन में कुछ अगर चर्चा करते हैं, दैट इज कॉल्ड मनन। एंड निधिध्यासन, ध्यान में बैठते हुए अगर उसको अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड निधिध्यासन। दैट इज कॉल्ड निधिध्यासन। স্যার यस। বলছি যে যেটা বললেন সার্ভানা সার্ভানা, সেটা হচ্ছে শুনে শুনে, মানে গুরু বলছে সেখান থেকে আমি শুনছি, শুনে শুনে আমি বুঝছি বা পড়ছি। বানানা হচ্ছে মনে মনে চর্চা করা। ধরুন যে শ্লোকগুলো আমরা পড়ছি মাঝে মধ্যে মনে মনে ভাবি যে মনে আছে কিনা, এটা মনে মনে চর্চা, বুঝলাম। কিন্তু যেটা ধ্যানের মধ্যে চর্চা, এটা কি? যেটা আপনি ধ্যান বলছেন আমি ওটা শুনে কিছু বোঝার চেষ্টা করছি, এটা अच्छा, এটা বুঝতে পারছি। ध्यान मीन्स नहीं, जैसे गुरु हैव सेड, दैट इज one word is there ना, that is वो क्या बोलते हैं, যত মত তত পথ, as many ways so many paths. So what is that? वो वही बोलते हैं
वो सुनने के बाद अलग अलग लोगों का अलग अलग थॉट प्रोसेस उसमें आते हैं। जो सुन रहे हैं वो गुरु के सामने वो सुने, मन ही मन में उनको चर्चा किए, निधिध्यासन, वो तब ध्यान में बैठ के वो सोच रहे हैं अच्छा क्यों वो बोले हैं चौतो मौत तौतो पौत और एज मेनी वेज सो मेनी पाथ, इनका मतलब क्या है। सो दैट्स द थिंग कि कोई भी एक व्यक्ति जब वैसे ही ध्यान में बैठते हुए वो सोचने का या वो कितना सही और कितना गलत है ये सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड निधिध्यासन। ओके, आर यू गेटिंग? तो यही है श्रवण मनन निधिध्यासन। মানে Yes. একটা বিষয় জানার পরে সেই বিষয়টাকে আমি প্রপার জানতে পারছি কিনা, না নাকি সেই বিষয়টা প্রপার আমি এরকম কিছু? नहीं, वो कितना सही और कितना गलत है, गुरु ऑलवेज सही बोलेंगे या ऑलवेज गलत बोलेंगे ऐसा नहीं है। तो जो भी वो बोलेंगे उसको समझना, वही है निधिध्यासन। আচ্ছা, মানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা সঠিক বুঝলাম কিনা। एकदम, मतलब जो बोल रहे हैं गुरु वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, उसको समझना ही अल्टीमेट है। ওকে। एनी क्वेश्चन? স্যার, जाना योगा का मीन्स नॉट जाना योगा, दैट इज ज्ञान योग। इतना टाइम तक हम बोल रहे हैं ज्ञान योग, अभी जाना योगा कैसे हो गया? अच्छा, ज्ञान हो गया, हाँ, तो इसका मीन्स नॉलेज। एकदम मैंने वही तो बोला हमने, ज्ञान मतलब नॉलेज। ज्ञान के द्वारा जब हम लोग अल्टीमेट दैट इज भगवान को जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्ञान योग। ज्ञान हो। यस, देन then sadhan chatushtay means, what is sadhan chatushtay? The sadhan chatushtay helps in preparation of intellect, emotion and will. With such a preparation, the sadhaka or practitioner should begin the study of Vedanta or under a realized teacher. The study contains of the 3 stages of Jnana Yoga practice, which are as follows: Sravana, Manana and Nididhyasana. Means कोई भी व्यक्ति अगर वो ज्ञान योगी मतलब बनना चाहते हैं तो उनके अंदर में कुछ क्वालिटी होना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड साधन चतुष्टय। और उसके अंदर में वो क्या होता है, इंटेलेक्ट, इमोशन एंड विल को डेवलप करते हैं। और वो श्रवण मनन निधिध्यासन से अल्टीमेट जो गॉड है उसको वो समझते हैं या जानते हैं। तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ वेदांत, ऑफ ए सीकर ऑफ रियलिटी, मतलब जो अल्टीमेट क्या है उसको जो जानना चाहते हैं, उनके अंदर में ये 4 गुण होना चाहिए, दैट इज विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मोक्षत्व। Vivek. What is Vivek? Vivek means discrimination between the real and unreal, the eternal and ephemeral, the firm conviction that Brahma only is real and this universe of name and forms is unreal. विवेक वही है क्या सच है, मतलब क्या अल्टीमेट है और क्या अल्टीमेट नहीं है।
अल्टीमेट है, दैट इज ब्रह्म, और जो ब्रह्म अल्टीमेट है वही ज्ञान में एस्टेब्लिश्ड होना, दैट इज कॉल्ड विवेका। यस पूनम। सर वेदांत का क्या मतलब समझाए, रेफरेंस समझाए? वेदांत मतलब वेद का अंत, मतलब इन पार्ट ऑफ वेदा, दैट इज उपनिषद। उपनिषद नोन एज वेदांत। जो इंडियन 6 फिलोसॉफी है, शायद हम लोग पढ़ाई किए हैं ना उस दिन, एक दिन 6 फिलोसॉफी, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योगा, मीमांसा और पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा और वेदांत, वही है वेदांत। जो ज्ञान कांड है, मतलब सिर्फ जो नॉलेज लेके चर्चा करते हैं, वही है वेदांत। सर यस। ये साधना चतुष्टय जो है, ये क्या कोई क्वालिटी है स्टूडेंट के अंदर? यस, मतलब कोई अगर स्टूडेंट अगर स्कूल में भी जाते हैं ना, उनके अंदर में ये क्वालिटी भी होना चाहिए। अच्छा। कोई सोचो आज 10th का स्टूडेंट है, तो उनके अंदर में क्या होना चाहिए? विवेक। मतलब अल्टीमेट क्या है? अच्छा से पढ़ाई करना और नॉलेज गेन करना। मैं फास्ट होऊंगा, सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट डिवीजन, स्टार, इट डज नॉट मैटर। तो वही है कि मुझे नॉलेज लेना है, और नॉलेज कैसे होगा? उसके अंदर में अगर वैराग्य होगा। वैराग्य मतलब नॉन अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन डन ईदर फॉर हियर और हियर इन आफ्टर, which result in the absence of any desire for transitory enjoyment. Patanjali defines vairagya as drishtanusravika vishaya vaitishnasya vasikara sanga vairagyam. It means having detachment towards objects seen, these worldly objects, and hard other worldly objects. Also, this detachment is consciously practiced and not happening through compulsion or by default. वैराग्य वही है जो, मतलब जैसे कोई अगर 10th का स्टूडेंट है, उनका वैराग्य क्या होना चाहिए? जैसे वो मोबाइल पे एडिक्टेड ना हो, आजकल का दिन में टीवी देखना कम कर दे, अपना फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बाहर ना घूमे, और कोई हो सकता है कि कोई सिबलिंग हो या कोई मतलब मतलब बाहर भी नहीं जा रहा है, घर के अंदर में भी ऐसे ही समय का बर्बादी ना करे। तो ऐसे ही उनको अच्छा इच्छा है कि अच्छा ठीक है, मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है या घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है, बट दे हैव टू हैव वैराग्य। या गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनसे उनको वैराग्य होना चाहिए, मतलब उनसे उनको डिटैचमेंट होना चाहिए। और किसके साथ अटैचमेंट होना चाहिए? विच इज हिज अल्टीमेट लक्ष्य और गोल, दैट इज वो पढ़ाई करने में उनको टाइम देना चाहिए। अगर किसी भी कोई भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट के साथ उनका अटैचमेंट हो जाता है, तब वो और पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कोई कर पाते हैं ऐसे? अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई विषय के साथ उनका संबंध अगर हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक सो। सो दैट इज द अल्टीमेट ऑफ वैराग्य। देन सट संपत्ति। সেই লম্বা ওয়ার্ডটার আরেকবার প্রোনাউন্সিয়েশন করুন না। दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, डोंट नॉट नीड टू वरी। ওকে। ऐसे ही श्लोक है, वो बीच बीच में ऐसे बहुत सारा श्लोक रहेगा, पर उनको मेमोराइज नहीं करना है। हाँ, सिर्फ उनका मीनिंग जान लेना ही सही है। यह है दृष्टानुश्रविक विषय वैतृष्णस्य बोधिकार संग वैराग्यम। देन सट संपत्ति। सट संपत्ति is 6 attributes beginning with sama, which are as follows. That is sama, calmness; dama, self-control; uparati, detachment or self-withdrawal; titiksha, endurance or patience; shraddha, faith and sincerity; and samadhan, not losing the sight of goal. जैसे कोई अगर 10th का स्टूडेंट के ही अंदर में ये 6 गुण होना चाहिए। क्या? समा मतलब कामनेस, शांत स्वभाव का होना चाहिए। दमा मतलब उनका इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए।
उपारति डिटैचमेंट और सेल्फ विड्रॉल, मतलब कोई भी विषय से खुद को हटाना चाहिए। एंड तितिक्षा इंडुरेंस और पेशेंस। अच्छा अच्छा, समा मतलब कामनेस, मतलब जैसे रेस्टिंग ऑफ माइंड स्टेड फर्स्टली ऑन द गॉड और ब्रह्म आफ्टर हैविंग डिटैच्ड फ्रॉम वेरियस सेंसेस ऑब्जेक्ट्स बाय constantly directing the mind to dwell on their defects। जैसे कोई शांत स्वभाव का, जैसे आज सोचो कोई अगर मैथ जियोमेट्रिक पढ़ने के लिए गए हैं, तो वो अगर शांत स्वभाव का नहीं होगा, वो कभी भी मैथ नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं कोई? नहीं, वो शांत स्वभाव का होना चाहिए। दमा, इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। जैसे देखना कोई ऐसे गेम खेलने में मशगूल हो जाते हैं, या तो कोई बहुत खाना खाते हैं, या कोई तो नहीं खाते हैं, तो ये सेंसरी ऑर्गन जो है, इनके साथ भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और उसके साथ अगर है भी, उनको दमन करने का क्षमता होना चाहिए। देन उपारति डिटैचमेंट और सेल्फ विड्रॉल, कोई भी विषय से दिस कंसिस्ट ऑफ इन द माइंड फंक्शन ceasing to be affected by external world or object। जैसे कोई एक सिंपल एक विषय अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कोई फुटबॉल खेलने में, या तो फुटबॉल अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फुटबॉल वो देखने में बहुत इच्छुक है, ठीक है, बट वो अभी कल एग्जाम है, इसलिए वो नहीं देख रहे हैं। दैट इज वी कैन से उपारति। ऐसा नहीं है कि उसको इच्छा नहीं है, लेकिन वो नहीं देख रहे हैं क्योंकि নিজের ভালো ভালো লাগার থেকে নিজেকে সংযম রাখা, যে কালকে আমার পরীক্ষা, আমাকে এটা পড়তে হবে না, এখন আমাকে পড়তে হবে, এটা एकदम কি নিবি ওটা, নিজের ভালো লাগার থেকে নিজেকে সংযম করা। ना ना नॉट भालो लगा। उपारति मैंने डिटैचमेंट, मतलब कोई भी एक समय काल के लिए कोई एक विषय से मन को हटा लेना। মানে স্যার, আমরা যখন ছোটবেলায় পরীক্ষা দিতাম, তখন তার আগে আমরা টিভি দেখতাম না, অন্য কোনো কাজ করতাম না, তো সেই বিষয়টাই তো एकदम अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। सो think in that way also, ठीक है। देन तितिक्षा एंडुरेंस और पेशेंस, धैर्य रखना होगा। जैसे कोई बोल रहे थे ना, जैसे जियोमेट्रिक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अच्छा ठीक है, आज नहीं, एक दिन पढ़ाई करने से नहीं होगा, बार बार उनको अभ्यास करना होगा, और अभ्यास के द्वारा वो उनको जान पाएंगे। दैट इज कॉल्ड तितिक्षा। श्रद्धा, जैसे अगर कोई जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी के ऊपर उनका फेथ होना चाहिए, तब जाके वो जियोग्राफी के बारे में जान पाएंगे। ये फॉर्म कन्विक्शन इन द स्क्रिप्चर्स एंड गुरु, अगर योग में है तो योग शास्त्र में जो लिखा हुआ है, या उनका जो टीचर्स है या मास्टर्स है वो जो बोल रहे हैं, उनके ऊपर भी श्रद्धा होना चाहिए।
समाधान, not losing sight of goal, constant concentration of the intellect on the ever pure Brahma. समाधान, not losing sight of goal, मतलब जो अपना लक्ष्य है वहां से अपना मन को नहीं हटाता है, that is the समाधान, that is the समाधान. जैसे वो 10th के एग्जाम देंगे और इसके लिए जो भी है नॉलेज वो एक्वायर करेंगे, दैट इज वी कैन से ओके, तो दिस इज कॉल्ड समाधान. जैसे मुझे जैसे देखना बहुत सारा ऐसा है, एग्जामिनेशन के पहले वो बोलते हैं अच्छा नहीं नहीं अभी एग्जाम नहीं देना है, और थोड़ा पढ़ाई करके अच्छा से पढ़ाई करके फिर तैयार होके एग्जाम देंगे. देखना वो लोग क्या 100 में 200 लाते हैं मार्क्स. नेहा, ऐसा किसी को देखा जो बाद में पढ़ाई किए और एग्जाम दिए और 100 में 100 लेके आए? नहीं होता है. उसी टाइम पे वही फोर्स में जो पढ़ाई करते हैं और निकल जाते हैं वो निकल जाए, बाद में होने से और नहीं होता है. दैट्स द थिंग, दैट इज द समाधान. मतलब जो भी करना है मुझे उस लक्ष्य में पहुंचना है, दैट इज द समाधान. देन मुमुक्षत्व. व्हाट इज मुमुक्षत्व? दैट इज yearning और yearning फॉर फ्रीडम. मतलब कोई भी किसी भी हाल से मुझे, जैसे कोई अगर 10th का है तो 10th मुझे अच्छा मार्क्स करना ही है, इसके लिए जो करना है वो हम करेंगे. दैट इज कॉल्ड मुमुक्षत्व. सर हम लोगों को भी मार्क्स मिलेगा इसमें मार्क्स मिलेगा, एग्जाम में? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, तो दैट इज द अल्टीमेट, वही है अल्टीमेटली मुमुक्षत्व. ओके, স্যার यस. মুমুক্ষুত্ব মানে ভালো রেজাল্ট করার জন্য যা যা করার দরকার আমি সেই সব করব, কিন্তু আলটিমেটলি সেটা তো বিজ্ঞানময় পোষাতেই চলে গেল, যে আমি ভালো করে বুঝবো, সেটাকে জানবো, তবেই তো করতে পারবো. क्या करना है? মানে ভালো রেজাল্ট করতে যদি হয় তো সেটা তো বিষয়টা জানতে হবে. আমি টিভি দেখা ছেড়ে দিতে পারি, খেলাধুলা করা ছেড়ে দিলাম, বাট আলটিমেটলি তো আমাকে নিজের পড়াটাকেই তো আগে বুঝতে হবে, জানতে হবে. एकदम, वो तो करना ही है. इसीलिए तो बोला जाता है कि जैसे जो लक्ष्य है उससे हटना नहीं चाहिए. इफ यू आर नॉट सेग्रीगेटेड फ्रॉम योर लक्ष्य, तो तब देखना कि
कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम योर अल्टीमेट गोल, तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कोई अगर स्टूडेंट वो पढ़ाई करते हैं और वो सही से पढ़ाई करते हैं, तो तब देखना वो अपना जीवन में वो अच्छा मार्क्स भी लेके आते हैं और अच्छी जगह पे भी वो पहुंच जाते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वेयर जो लड़का उस टाइम पे बहुत चालाक थे, वो अभी भी चालाक है, और वो भी, जैसे कल हम बोल रहे थे ना उस दिन एक उदाहरण, तो अभी भी वो रास्ता के मतलब रेलवे स्टेशन में वो भी बैठे हुए रहते हैं, लेकिन जिसको आगे निकलना है वो निकल गया। इसीलिए मुमुक्षुत्व क्या है, इसका एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। दैट इज एक जैसे मतलब वो ठाकुर रामकृष्ण देव के साथ ही हुआ था कि एक लड़का उनके पास एवरीडे आता था और बोलते थे कि मुझे भगवान देखना है। तो बहुत बार बोले, वो बोले ऐसे ऐसे भगवान भगवान ऐसे कुछ है नहीं, ये सब कुछ लोगों का वहम है, और ऐसे भगवान कुछ होता नहीं है, और अगर ऐसे भगवान देखना ही है तो वो मंदिर में जाओ, वहां पे मूर्ति लगा हुआ है, सो यू कैन हैव ए दर्शन, और उनके साथ आप साक्षात्कार कर सकते हो। तो वो सुना ही नहीं, बोले कि नहीं, मुझे देखना है, आपको दिखाना है। तो फिर वो नहीं छोड़ते हैं। एक दिन वो पानी में ऐसे नहाने के लिए गए, गंगा स्नान के लिए, और उनको वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोले कि आज आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आज आपको बोलना ही है और दिखाना ही है भगवान। ऐसे 2-4 बार बोले, और वो लेके सिर को लेके पानी के अंदर में डुबो दिए। और ऐसे अगर डुबो देते हैं तो क्या करेंगे प्रियस्मिता, किसी को अचानक उठने का कोशिश करेगा सर, बचने का। अच्छा, बस वो लड़का भी वही किया, छोड़ दिया। फिर वो बोले, अरे आप बोले भगवान दिखाने के लिए, फिर वो ऐसे ही किए, पानी के अंदर में उनका सिर डुबो दिए। ऐसे 3 बार किए, फिर छोड़ दिए। फिर वो जब उठा तब वो बहुत गुस्से हो गए वो लड़का कि अरे आप तो मुझे मार गए थे, अभी हम मर ही जाते। तो उन्होंने एक ही शब्द उनको बोले कि आप क्या नीचे जाके आंख खोल के देखा वहां पे भगवान है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड मुमुक्षुत्व। मतलब उनके अंदर में ना था श्रद्धा, ना था समाधान, ना मुमुक्षुत्व। शायद यहाँ पे ओम शांति ओम फिल्म सभी ने देखा होगा। नेहा देखा? एक बहुत बड़ा डायलॉग है ना, क्या है वो, कौन जानते हैं आप? पूनम? वो कायनात वाला सर। हाँ हाँ, कायनात वाला। कभी क्या, अगर किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है, आई थिंक। अच्छा, पूनम शायद और भी अच्छे से बोलेंगे, बोलो। सर यही है जो नेहा ने बोला। नहीं नहीं, कुछ शब्द मिसिंग है। शिद्दत। यस। हाँ, शिद्दत। तो मतलब if you are asking something from bottom of your heart, तो definitely will get that things. No one can collect it from you. शायद अभी नहीं है तो बाद में होगा। उस मूवीज में भी वही दिखाया गया कि वो सुपरस्टार बनना चाहता था या जो भी है, and he became superstar in next turn of his life. नया जन्म के साथ वो उसी जगह पे वो पहुंच गए। ठीक, तो जो भी है, सो दैट इज द थिंग्स ऑफ मुमुक्षुत्व। वही कोई भी एक व्यक्ति वो अगर ज्ञान योगी बनना चाहते हैं, उनके अंदर में भी ऐसे इच्छा होना चाहिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तभी जाके वो ज्ञान योगी बन सकते हैं। यस मंजूरी, एनी कंफ्यूजन? नो सर।
तो कल ये मुझे समझा पाओगे? हाँ सर। अच्छा, दिस विल बी दिस वीक्स होम टास्क। ओके, नेक्स्ट वीक मंडे जब ज्वाइन करेंगे हम किसी को भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ज्ञान योग क्या है क्या नहीं है तो समझाना है, और कोई भी उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ঠিক है দেবস্মিতা? স্যার তার মানে মুমুক্ষুত্ব মানে হচ্ছে মানে নিজের যে আলটিমেট লক্ষ্যটা সেটা পাওয়ার জন্য মানে যত রকম চেষ্টা করা শেষ চেষ্টা মানে করে যাওয়া, এটাই বা একদম করে সেটা পাওয়া। ইন্টেন্স ডিজায়ার পাবো কি পাবো না জানি না, চেষ্টাটা চালিয়ে যাওয়া যে আমাকে एकदम করতেই হবে, মানে এইভাবে যেটা করা হয় मन में সেটাই আর इच्छा কি। होना चाहिए, इंटेंस डिजायर होना चाहिए, और जो काम करेंगे वो तो करेंगे ही, तब श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा होगा, क्योंकि बिकॉज हियर दे आर टॉकिंग अबाउट ज्ञान और नॉलेज। सो इफ यू आर विलिंग टू जैसे जस्ट लर्न दिस, जैसे अभी यू ऑल आर ज्ञान योगी, अभी योग को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो योग के बारे में हर एक चीज को जानने का अगर कोशिश करेंगे मन से, तो देखना वो जानना बहुत मुश्किल नहीं है, वो इजीली आप लोग जान जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो अच्छा ये तो बहुत टफ है, ये है वो है, तब ये बहुत सच में टफ है। কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না। ऐसे बोल सकते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी आएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे जो हम चाहते हैं उसके प्रति मन को लगाते हुए रखना। जैसे कर्म करेंगे, ये कर्म करेंगे, ये इच्छा मन में रखना, दैट इज कॉल्ड ज्ञान योग। जब कर्म करेंगे दैट विल बी कर्म योगा। यस पूनम। सर ये मतलब जो ये तो क्वालिटीज है ना कि विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए और ये मुमुक्षुत्व होना चाहिए, मतलब लास्ट वाला यही कहना चाहता है कि अगर आप सीकिंग नेचर में हो तो आप हमेशा ही उस सीकिंग नेचर में रहो, रहो, हर जगह वो ढूंढो, मतलब अल्टीमेट जो हमारा योग होगा परमात्मा, इंडिविजुअल का परमात्मा से। एकदम, और उसके बारे में निरंतर जानने की कोशिश करते रहना। जैसे हम लोग तो सभी स्कूल में पढ़ाई किए हैं, लाइफ साइंस पढ़ाई किए हैं, उसमें हर एक इंडियन सिलेबस में है कि कैसे हाउ लुक्स लाइक लंग्स होता है, कैसे हार्ट होते हैं, और एक जैसे क्लास 7-8 में रहता है कि एक फॉग को काटते हुए दिखाया जाता है उनका शरीर में क्या क्या है, लेकिन क्या हम लोग कभी वो फॉग को सच में काट के कितने लोग देखे हैं? अच्छा, वेरी गुड। साइंस का जो स्टूडेंट है वो तो दिखा है। नहीं 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 नहीं, क्लास 8 में और क्या साइंस का स्टूडेंट लगता है? क्लास 8 में नहीं दिखा है, उसके बाद भी दिखा है। नहीं, যারা বায়োলজি নিয়ে পড়েছে তারা দেখেছে। नहीं नहीं, उसी टाइम पे, लेकिन उसी टाइम पे दिखाना भी चाहिए, और जो खुद पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी जाके काट के देखना चाहिए कि क्या था। ইচ্ছা হয়েছিল, দেয়নি কেউ। हाँ, इच्छा ছিল। শুনেছি যে ব্যাঙ ধরে নিয়ে গেছে শিশি করে কাটবে বলে। हाँ, তাকে that is- করা হচ্ছে हाँ, পেরে सुनने से कैसे होगा, खुद देखना होगा, खुद काटना होगा, कुछ देखना होगा, कहाँ पे है हार्ट, कहाँ पे है लंग्स। देखो, जो ये बायोलॉजी या ये एनाटॉमी जो भी बोलते हैं, सोचो जो जिसने फर्स्ट इसके बारे में पढ़ाई किया है, अच्छा सभी म्यूट कर ले, जो फर्स्ट इसके बारे में पढ़ाई किए हैं तो उनको कितना कठिनाई झेलना पड़ा, क्योंकि ना तब किसी का शरीर मिलता था, और लेकिन देखो आज जितना भी ऑपरेशन होते हैं तो वो कोई ना किसी का बॉडी में वो पहले उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, तब ना जाके वो कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग नॉलेज चाहते हैं तो नॉलेज के प्रति आग्रह होना चाहिए। अच्छा ठीक है, जैसे यू पीपल आर आस्किंग ना टुडे, सर ये शब्द का मतलब क्या है, वो शब्द का मतलब क्या है, ऐसे जानने का या उत्सुक रहना ऑलवेज होना होगा, तब जाके आप सच में कुछ चीज प्राप्त कर पाओगे, अदरवाइज नॉट। तब जाके ज्ञान सही से प्राप्त होगा। ऑलवेज यू हैव टू बी इनक्विजिटिव, मतलब मन में इच्छा, जानने का इच्छा रखना होगा। यस पूनम। सर इस टॉपिक से अलग है मेरा क्वेश्चन, मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि सर जैसे योगा हम जो आज जान रहे हैं कि व्हाट इज योगा और ये है,
जैसे अगर और जो रेस्ट ऑफ लोग हैं जो योगा को जानते हैं, उनका मतलब है योगा मतलब आसन, उनको इतना ही नॉलेज, उनको जो पता है। तो सर जब हम उनको बताएंगे ना कि मतलब जो हमसे जब वो इंटरेक्ट करेंगे, जब हम अभी थोड़ा सा हमारे अंदर जो भी ज्ञान आया है कि योगा क्या है, जानना शुरू किया है, तो सर वो तो हमें बोलेंगे क्या बोल रही है, योगा ये थोड़ी है, योगा तो आसन है। देखो, कोई अगर सिंगर के सामने जाते हैं तो क्या वो सरगम सुनाते हैं, सारे गामा पाधा निसा सुनाते हैं? वो क्या सुनाते हैं? वो मधुर संगीत सुनाते हैं। लेकिन उनको वो सारे गामा पास वही सीखना पड़ा, ठीक है, वो सरगम उनको सीखना पड़ा, फिर जाके वो रिवाज किए, फिर जाके वो अभी कॉन्टेम्पररी जो भी सॉन्ग है वो बना रहे हैं। तो वैसे ही ये हम बोल सकते योग का ये है सरगम। योग का हर एक चीज हम लोग जान रहे हैं, लेकिन कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा वी डोंट नो। जैसे कोई भी व्यक्ति आने के बाद बोले कि मेरा पेट मतलब पेट कम करना है, तो वहां पे कहाँ काम आएगा भक्ति योगा, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, कहीं पे काम आएगा? लेकिन आएगा अगर इफ यू आर ए मतलब योगा इंस्ट्रक्टर, तब तुमको क्या करना होगा, यू हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग। अच्छा ठीक है, इनका लाइफस्टाइल क्या है, जब मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे तब जाके लगेगा अच्छा ठीक है इसका ज्ञान कम है, मतलब ये चाहते हैं दुबले पतले होने के लिए, लेकिन वो जाके एवरीडे इवनिंग में जाके चाउमीन खाते हैं, है ना नेहा? तो तब वो जाके कैसे वो दुबले पतले होंगे? इट्स इम्पॉसिबल। यस नेहा बोलो। हाँ सर, इसके ही रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि मैं भी यही सोच रही थी कि जैसे हम लोग तो पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग को पता चले कि व्हाट इज योगा। जैसे आप बोले कि पहले सारेगामापा सीखना पड़ता है, जैसे बेसिक से ही फिर इंसान आगे बढ़ सकता है। बट मैंने बहुत लोगों को देखा है, जैसे हाँ वो लोग बहुत योगा करते हैं, मॉर्निंग में पूरा पंचुअल है, लेकिन फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो लोग साइकेट्रिस्ट को भी मिल रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, वो लोग का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो आई थिंक कि अगर वो लोग योगा करे तो उसके संग भी ये बेसिक नॉलेज देना चाहिए, जिससे वो लोग को कम से कम मेंटल हेल्थ तो वो लोग का हेल्दी रहे। अच्छा एकदम, अगर ये सब कुछ इंफॉर्मेशन उनको थोड़ा थोड़ा बहुत हम लोग देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो तब देखेंगे कि वो आसन प्राणायाम के साथ उनका सही में डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि सच में ये बात पूनम जो है वो एकदम राइट बोली है कि योगा मतलब कि हाँ, हम लोग को भी पहले जब हम लोग ये कोर्स नहीं किए थे, हम लोग को पता था कि हाँ इज जस्ट लाइक अ एक्सरसाइज, कि हाँ वो करने से हम लोग का हेल्थ अच्छा रहेगा, हम लोग का बॉडी फिट रहेगा। उसके आगे हम लोग को इसका नॉलेज नहीं था। एकदम, ये होना भी मुश्किल है, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये ज्ञान होना रिक्वायर्ड है और ये जरूरी भी है। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञान योग सभी एक बार थोड़ा अच्छा से रिवाइज करें, पढ़ने की कोशिश करें। ठीक, अच्छा एक सूचना शायद हम सभी को भेजे हैं, देख लेना। अगर कोई उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये संडे पार्क स्ट्रीट सेंटर में आ सकते हो। पूनम कभी हम लोग दिल्ली में भी करेंगे, डो नॉट नीड टू वरी। ठीक है और हम लोग तो अभी जाएंगे भी ऋषिकेश। पुणे में भी आ जाओ। कहाँ पे? पुणे? पुणे। अच्छा पुणे। ठीक है, यहाँ पे अगर आ जाइएगा तो एक बार मिल लेंगे। एकदम ऑलरेडी है मुंबई में, मुंबई नहीं, हाँ मुंबई के आसपास में भी कुछ स्टूडेंट है। आज भी एक आया था मुंबई से, वो मिलने के लिए कोलकाता, मतलब वो कोलकाता में काम पे आए थे फिर मिलने के लिए आए। सो ऋषिकेश में जैसे हम लोग जाएंगे वो तो दिल्ली के आसपास ही है, 6 घंटे का जर्नी है। वो मई महीने में जाएंगे, 21 मई टू 27 मई। और एक है जो भी बंगाल में है, इफ यू आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, अभी इस क्या बोलते हैं संडे आ जाना है 3 बजे पार्क स्ट्रीट में। और शायद सभी को एक लिंक भी भेजा, मैंने भेज दिया था वो फॉर्म फिलअप करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, मिनिस्टर ऑफ आयुष का, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इफ यू पार्टिसिपेट देन यू विल गेट 1 पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। लेकिन वहाँ पे कुछ योग का परफॉर्मेंस करना होगा, और क्या परफॉर्मेंस करना है
तो वो यहाँ पे संडे आके वो सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। यस पूनम। सर मैंने सुना था कि मतलब सर्टिफिकेशन होता है, जैसे कोई 108 बार अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो भी समथिंग कुछ होता है सर? वो एक इवेंट था लास्ट ईयर जनवरी 15 जनवरी का, और उस टाइम पे हम लोग भी वो सर्टिफिकेट प्रदान किए थे, मोर देन 500, ठीक है। वैसे भी अगर इस साल आते हैं तो डेफिनेटली यू ऑल विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। यस नेहा। हाँ सर, वो जो आप सर्टिफिकेट का बात किए ना, क्योंकि हम लोग के एक रिलेटिव में है, वो भी वो जब उनको वो सर्टिफिकेट मिला था तो वो पब्लिश की थी अपने सोशल साइट पे। तो उस सर्टिफिकेट के थ्रू वो बहुत जगह जाके योगा भी सिखा रही हैं, तो इट इज वैलिड? नहीं, दैट इज नॉट वैलिड। बट वो उनको बहुत सारा ऑफर आया एंड ही इज गोइंग टू कॉम्प्लेक्स टू टीच योगा, तो उसके लिए हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे कि जस्ट एक नॉर्मल सर्टिफिकेट लेके हाउ कैन शी। देखो अभी क्या है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है। फ्यूचर में ये जाके जब लोगों को अंदर में ये जागरूकता आ जाएगा, और अभी थोड़ा धीरे धीरे आने भी लगे हैं, लोग पूछने लगे हैं कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ पे है, और वो तो एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, वो तो कुछ स्किल सर्टिफिकेट या वो एकेडमिक सर्टिफिकेट नहीं है। वो सर्टिफिकेट कोई भी अगर देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको, अगर उसके बावजूद भी कोई अगर उनको बुला रहे हैं तो उनका खुद का रिस्क है, ठीक। एक सूर्य नमस्कार करने में कितना टाइम लगता है? हम लोग जो किए थे 12 राउंड सूर्य नमस्कार 15 मिनट लगा था, और उससे हम लोगों का मतलब जूम पे एंड फेसबुक दोनों में ही मोर देन 500 लोग जुड़ के उस टाइम पे एक ही दिन में सूर्य नमस्कार अभ्यास किए थे। तो एंड सभी को सर्टिफिकेट भी मिला। तो वो तो सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, उसका वो कोई ऐसे ही अच्छा कुछ सर्टिफिकेट या स्किल सर्टिफिकेट है या ऑथेंटिसिटी है, वो इंस्ट्रक्टर बन गए, ऐसा कुछ नहीं। যেটা পার্কস্ট্রিটে হবে এটা কি অনলাইনে হবে? ये तो जाके 4 तारीख कृष्णनगर में होगा, 4 तारीख कृष्णनगर। পার্কস্ট্রিটে যেটা হচ্ছে বললেন রোববার? दैट इज वो रिहर्सल बोल सकते हैं कि कैसे क्या करेंगे। वो एक हम लोग के अंदर में ही एक है स्टूडेंट, दैट इज चयना, तो सी विल टेक केयर ऑफ दैट इवेंट, और वो कैसे कौन कितने बजे कितना क्या करेंगे, क्योंकि 3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। सो वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए, ठीक है। सो इफ यू आर इन इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली कम डाउन, ठीक है। Okay, so we'll conclude the session with prayer. Straight your spine, keep close your eyes. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Grab your palms. When it's little warm, gently attach your opponent, please. And take your own time to open your eyes. Thank you everyone. স্যার একটা কোয়েশ্চেন আছে, Yes. এই পড়াশোনা রিলেটেড নয়। Hmm. বলছিলাম যে যদি কারো লোয়ার ব্যাকে খুব পেন থাকে, সাপোজ ধরুন আমার আছে, আমি যদি বারবার ওই আপওয়ার্ড ডগ থেকে ডাউনওয়ার্ড ডগ, মানে যেটা করি আমরা আপওয়ার্ড ডগ টু ডাউন, ওতে কি হতে পারে, মানে আরো বাড়তে পারে? মানে ডাউনওয়ার্ড ডগ থেকে যে আপওয়ার্ড ডগে যাচ্ছি, এটা যে বারবার করছি, বা ওই পুশ আপ করে যেটা আমরা করছি, সেটাতে কি হতে পারে, মানে বাড়তে পারে এটা গ্র্যাজুয়ালি? इट कैन बी। इसलिए अगर किसी का ऐसे है पेन, तो ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग थोड़ा नहीं करना ही ठीक है, ठीक है। इवन सूर्य नमस्कार में पदहस्तासन भी करना ठीक नहीं है। और लेकिन वो पेन अगर इफ यू रेटिंग योर पेन मोर देन 7, देन यू हैव टू।
अच्छा, आपने उस दिन भी यही बोले थे कि अगर ज्यादा है तो बैक पेन में प्रॉब्लम हो सकता है। Right. थैंक यू सर। Okay, thank you.